इंटर इज नॉट सीए फाउंडेशन की हंसते खेलते हो जाएगा। एक बार अटेम्प्ट्स का जब लूप लगता है ना, तो इवन अ टॉपर बच्चा कैन फील डिजेक्टेड एट ऑल द टाइम्स। Cause trust me guys, CA foundation and CA inter, there is a huge level of difference in them. So it's finally time to exonerate yourselves out of your chill student mode and become a serious CA aspirant. So hello my balance sheet warriors, I hope you're doing good post your 4th March results. And if you are a CA foundation student who just cleared his exams and right now is waiting कि अपना CA इंटर का कोचिंग कहाँ से लेना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या क्या करना है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में CA इंटर निकाल पाऊँ, then this video is for you. So hi guys, I'm Ishika and I'm currently a CA finalist and I'm doing my articleship from KPMG in Start Audit domain. And today I'm here to tell you the very basic tips that anybody, if follows, can actually ace his exams. So as we move further with this video, we will be covering these topics and I hope by the end of this video you will have an exact clarity कि आपको अपना first attempt में कैसे CA inter exams clear करने हैं. So I hope this video is useful to you and do like, subscribe and share guys. So guys, starting from very basic, your CA inter exams will be having two groups unlike your CA foundation exams, and each group will be having 3 subjects. So group 1 covers advanced accounting, corporate and other laws and taxation. Your taxation subject will be covering of part A and part B, which will be income tax and GST. Now coming to the second group, which will constitute of your cost and management accounting, your auditing and ethics, and then your FMSM, which is actually financial management and strategic management. So कोई भी जो CA इंटर में एंटर करता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मुझे 2 ग्रुप्स देने चाहिए या सिंगल ग्रुप भी बेटर है अभी के लिए. So guys, I'll be discussing the perks and the privileges that you get when you decide to give your 2 groups together. So the very first advantage is set off. Now what is set off? I'll explain you guys. Set off में क्या होता है कि आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है. ग्रुप 1 will cover 3 subjects, 100 number each, so it would be total of 300 marks each. So 300 नंबर के आपके 2 ग्रुप्स होंगे. ग्रुप 1 में क्या होगा, अगर बाय चांस आपके 200 नंबर आ जाते हैं ग्रुप 1 में एंड आपका पासिंग क्राइटेरिया वॉज 50%, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली 50%, so you have to have 50% of 300 to clear any one group, that is 150 marks, and each subject में आपको लेना होता है 40% marks. So out of every subject that covers of 100 marks, आपको 40 40 40 तीनों में लेना है. एंड देन उसके बावजूद भी यू डू नॉट क्लियर इफ़ यू डू नॉट मेक 50% इन एग्रीगेट. सो लेट्स जस्ट सपोज, गॉड फॉरबिड, आपके ग्रुप 1 में आ जाते हैं 200 मार्क्स, सो ऑलरेडी इन एक्सेस ऑफ 50 मार्क्स हियर, बट ग्रुप 2 में गॉड फॉरबिड यू आर नॉट एबल टू क्लियर देयर एंड यू गेट 1 or 120 मार्क्स और समथिंग और बिलो 150 मार्क्स. सो जो एक्सेस 50 मार्क्स आपको ग्रुप 1 में मिले, उसका सेट ऑफ आपको ग्रुप 2 में मिल जाएगा. सो यू विल बी टेक्निकली कंसिडर्ड एज अ CA फाइनलिस्ट देन, बिकॉज यू विल बी क्लियरिंग योर एग्जाम्स बाय द क्राइटेरिया ऑफ सेट ऑफ. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मोस्टली टीचर्स तभी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 यूजुअली बच्चे निकाल लेते हैं, बट ग्रुप 2, considering the difficulty level and the theoretical level of the subjects that it contains, group 2 usually sometimes बहुत difficult हो जाता है क्लियर करने के लिए. एंड देन the other perk that you get while clearing, जब आप दोनों अपने ग्रुप्स करते हो, पहले क्या होता था कि पहले आप अगर एक ग्रुप भी क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे, जो मैंडेटरी 3 years की होती थी. बट नाउ एज पर द न्यू स्कीम्स ऑफ ICAI, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दोनों के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे. Until then you cannot start with your articleship. So actual में if you clear your first group and then you have to wait to clear your second group to be able to be eligible for getting an articleship. So this actually is a case कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है. पहले आप 6 महीना ग्रुप 1 के लिए पढ़ाई करो, then you study for group 2 and then you clear and then you get articleship. And now एक्चुअली होता क्या था, दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली अ मेजर एंड अ वैलिड क्वेश्चन व्हेन योर CA इंटर एग्जाम्स वर टोटल 8 सब्जेक्ट्स. सो उस समय क्या होता था, पिछले स्कीम के हिसाब से देयर वर 2 ग्रुप्स 4 सब्जेक्ट्स ईच. सो क्या होता है कि फाउंडेशन में बच्चे के होते हैं 4 एग्ज़ाम्स,
तो एकदम से when you come into इंटर आपका डबल हो जाता है सिलेबस, एंड इट्स जस्ट नॉट डबल बाय कि आपका नंबर डबल हो गया, बट देन द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन मच मोर थिंग्स दैट दे आर देयर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते थे कि बच्चा एकदम से डर जाता है कि मैं एक बारी में 9 महीने के अंदर आठ आठ सब्जेक्ट्स कैसे करूँगा। सो दैट वॉज वेन अ स्टूडेंट वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड टेंस्ड कि मैं दोनों ग्रुप्स दे भी सकता हूँ साथ में या नहीं। But now, since as per the new scheme, there are only 6 subjects that you have to clear, I believe that any aspirant should try to give both the groups together. But again, there are conditions and there are a lot of factors that this decision may be dependent upon, and it is wholly yours. If you feel कि अगर मैं दोनों ग्रुप साथ में देता हूँ तो rather than मैं एक भी ग्रुप क्लियर ना कर पाऊँ, उससे बेटर है कि आप एक ही ग्रुप दे लो, बिकॉज आई हैव हैड सम ऑफ माई नोन्स ऑल्सो जिन्होंने दोनों ग्रुप्स देने का ट्राई करा, बट गॉड फॉरबिड अगर वो वैसा आपके साथ केस बनता है कि आप दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं कर पाए, सो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो पॉइंट। आप एटलीस्ट एक लेवल तो क्लियर कर पाते ना इफ़ यू हैव चोजन वन ग्रुप। ना अनदर पॉइंट ऑल्सो, अगर आप अपने दोनों ग्रुप साथ में देते हो यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट अ रैंक। मैं ये एवरेज स्टूडेंट के लिए तो नहीं बोलती, बिकॉज हम जैसे स्टूडेंट्स तो वी डू नॉट इवन थिंक ऑफ गेटिंग अ रैंक, दिस इज फॉर द रैंकर्स माइंडेड, बट यू नेवर नो एनी वे। तो येस, दिस इज़ अ केस कि आप कभी भी रैंक नहीं एलिजिबल होगे रैंक के लिए इफ़ यू ओनली गिव योर वन ग्रुप, लाइक single group may you never get a rank. It is only and only when you give your both groups together you are eligible to be a rank holder. Now coming to the next topic कि CA इंटर और फाउंडेशन में एक्चुअली फ़र्क क्या है। सो गाइज, आपके CA फाउंडेशन में सिर्फ 4 एग्जाम्स होते थे, उसमें जो 2 होते थे आपके मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, दैट यूज टू बी MCQ बेस्ड ऑल्सो। तो एक रिलैक्सेशन हो जाता है जो आई फील मोस्टली स्टूडेंट्स 2-3 महीने में भी पढ़ के आराम से CA फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, बट CA इंटर इज़ नॉट दैट। डू नॉट एट ऑल थिंक कि आप जैसे CA फाउंडेशन पढ़े थे वैसे ही आप CA इंटर क्लियर कर लोगे। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन, इवन आई व्हेन आई क्लियर माई CA फाउंडेशन आई वाज लाइक कि हाँ 2 हफ्तों में अगर मैं इतना रिविजन करके 2 महीनों का पढ़ के 2 हफ्तों में रिविजन करके इफ़ आई कुड क्लियर CA फाउंडेशन तो CA इंटर भी हो ही जाएगा, but it's not that. CA Inter has varied amount of differences. The concepts are very much in depth and आपको एक थॉरो नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकलिटी से आपका एक वो मिलता है। जैसे आप लॉ पढ़ते हो तो आपका लॉ का जो सिलेबस है दैट इज़ गोइंग टू बी 2x मोर, एंड देन आपका इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट होता है, इनकम टैक्स से यूजुअली हर बच्चा डरता है ना। माई एरिया इजेंट हियर टू टेल यू कि इनकम टैक्स इज़ अ वेरी रिस्की सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ पेरिलस सब्जेक्ट एट ऑल। बट अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, बिकॉज इनकम टैक्स में क्या है, आइदर अ सब्जेक्ट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट इनकम टैक्स covers concepts which are basically theoretical, but then you have to apply it practically, so it's a mixture of both. एंड इनकम टैक्स में तो 50 मार्क्स का आपको GST आएगा, 50 मार्क्स का आपको डायरेक्ट टैक्स आएगा, एंड दोनों के दोनों दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपका लॉ का जैसे आपका सिलेबस बढ़ गया, आपका इनकम टैक्स का सिलेबस, आपका इनकम टैक्स तो नया सब्जेक्ट होगा, देन आपका सिलेबस इज़ गोइंग टू बी ह्यूमंगस, राइट। एंड देन आपका जो ये ऑडिटिंग का पेपर होता है दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू सब्जेक्ट टू यू नाउ, बट ऑडिटिंग में एज यू कवर योर सब्जेक्ट्स यू विल रियलाइज कि ऑडिटिंग एंड FMSM दीज आर सच सब्जेक्ट्स कि आपको इसमें रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, दैट इज़ हाउ यू आर एबल टू क्लियर, एंड आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज ICAI वुड नॉट बी रिवॉर्डिंग यू विद मार्क्स एट ऑल। सो ऑल दिस एक्चुअली अभी तो बहुत ईजी लगेगा, बट एज यू कंसिडर 9 मंथ्स के टाइम में अगर आपको ये सब करना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर अगर आपने डे 1 से अपनी पढ़ाई ऑन टिप्स एंड ऑन पॉइंट ना रखी तो। सो नाउ दैट विल नो द नीड ऑफ द ईयर कि एक तो प्रिपरेशन टाइम बहुत लेस है और सिलेबस तो टू मच है। So guys, don't worry, I've got you covered. I myself cleared my CA inter exams in the very first attempt, both groups, with 4 exemptions, especially in subjects like law, tax and audit and accounts. So don't worry guys, I've got you covered. All you have to do is stick to this video till the end.
And I really hope कि ये सब चीज़ें आपके काम में आए and this actually help you clear your CA inter in the very first attempt with least complications. So coming to tip number 1, conceptual clarity. आई नो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपको जो भी पढ़ना है आपको कंसेप्चुअली उस चीज़ को याद रखना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट, बट गाइज दिस एक्चुअली वर्क्स. CA फाउंडेशन में क्या होता था, इफ़ यू डिड नॉट नो एनी कंसेप्ट तो आपको यूजुअली टीचर्स भी आई गेस रेकमेंड कर देते होंगे कि रट्टा मार लो और एक बारी के लिए एग्जाम में पास होने के लिए ही, मतलब यू नो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज तो ऐसे ही चलती हैं कि जितना आप कंसेप्चुअली समझ सकते हो समझ लिया, बट जो चीज़ एट द एंड ऑफ द डे नहीं समझ आ रही है उसे याद करके एग्जाम में लिखाना, दैट्स इट. बट CA इंटर ऐसे नहीं चलेगा. CA इंटर में एक एक चीज़ की आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्चुअली ICAI हैज़ shifted to a more conceptual clarity वाला अप्रोच, एंड वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी अब ऐसे ही पूछने लग गया. इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द थ्योरेटिकली एंड रट्टाबाजी वाले क्वेश्चंस एनी मोर. इट अगर आप पास्ट ईयर का पैटर्न भी देखो ICAI का, तो द क्वेश्चंस हैव शिफ्टेड एंड दे हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड. ICAI is more and more testing you on the conceptual clarity that you guys have. So you have to be conceptually clear. At least take a oath today कि आप जो भी अब CA इंटर में जैसे जैसे आप अपना सब्जेक्ट शुरू करोगे, वट एवर यू लर्न इन योर CA इंटर, यू एक्चुअली हैव टू लर्न इट बाय हार्ट एंड नॉट जस्ट लर्न इट, यू हैव टू मेक इट कंसेप्चुअली क्लियर हेयर. बिकॉज सबसे पहला लेवल आएगा आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी का. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यू आर नॉट एबल टू लर्न इट. एटलीस्ट आपको 9 months तक तो वो चीज़ याद ही नहीं रहने वाली अगर आपको कंसेप्चुअली वो चीज़ याद ही नहीं है, समझ में ही नहीं है वो चीज़, जो आप समझ नहीं पा रहे हो तो नेवर एबल टू लर्न इट. सो फर्स्ट इज कंसेप्चुअली उस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखो. देन सेकेंड थिंग इज कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ICAI वॉन्ट्स द एग्जैक्ट लैंग्वेज जो वो अपने मॉड्यूल में लगता है. At least in the subjects like law, audit, SM, even SM is a very easy subject anyway. अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे ना, when you start your SM, you'll realize कि ये तो 12th के business studies की तरह थोड़ा थोड़ा लग रहा है, and it's very easy. In fact, पेपर भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. EIS SM होता था पहले हमारे टाइम में, बट अब EIS नहीं है. You just have FM SM. तो FM SM में FM is a practical subject, SM is a theoretical one, but SM बहुत easy होता है. बट उसका मार्किंग इतना स्ट्रिक्ट होता है बिकॉज दे एक्चुअली वॉन्ट यू टू लर्न द ICAI मॉड्यूल बाय हार्ट एंड उसी की लैंग्वेज आप लिखो मोस्टली. ना बाय लैंग्वेज इजंट लाइक कि इज़ भी आप वही जगह पे लगाओ. इट एक्चुअली मीन्स कि आप जो कीवर्ड्स हैं, जो अंडरलाइनिंग वर्ड्स हैं, जो हाईलाइट इन द एसेंस ऑफ द आंसर है, आप उसको मोल्ड मत कर देना, ठीक है. सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको याद भी रखनी पड़ेंगी चीज़ें, बिकॉज दैट इज हाउ यू गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स. Then comes writing practice, which I'll be covering further on in the video also, uska importance. But the overall level goes like this: conceptual clarity, then your learning, and then your writing practice. Coming to tip number 2, which is revision and your writing practice. So guys, ये तो मैं सच में बोलूँगी कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे आपको कभी भी ये चीज़ निगलेक्ट नहीं करनी है. फॉर वंस आई कैन स्टिल से यू कि जैसे FM इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कॉस्ट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इसके लिए ना आप फिर भी चूज़ कर सकते हो कि आप सिर्फ घर जाके 2 दिन में एक बार चाहे रिवाइज कर लो, या मतलब एवरी डे रिवाइज करना इज़ फार बेटर. बट इवन इफ़ यू फील कि आप नहीं कर पाओगे इतना, सो आप चाहे 2 दिन में जाके रिवाइज करो एंड उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मत करो. समटाइम्स आई वुड स्टिल से कि इट्स फाइन कि अगर आप बहुत अच्छे हो एंड यू कैन स्टिल मैनेज इट, इट्स ओके. बट 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे ऐसे जिसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं मिस कर सकते हो. आपको रिविजन तो करना ही करना है. यू हैव टू हैव दैट राइटिंग प्रैक्टिस डन डेली, एंड दोज 3 सब्जेक्ट्स आर दीज: ऑडिट, टैक्स एंड लॉ. इनको नहीं निगलेक्ट करना है गाइज. आई एम सेइंग इट मल्टीपल टाइम्स. ऑडिट एंड लॉ आर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, बट ये ईजी नहीं है. दीज आर नॉट ईजी. आई एम श्योर आपने लॉ तो पढ़ा ही हुआ है अपने फाउंडेशन में, एंड लॉ इज़ नॉट ईजी. लॉ हैज़ अ लॉट ऑफ लीगल terms and those Latin maxims that you used to learn, ex nihilo pacto, non ora action, and this and that. But trust me, CA एंटर में और भी ज़्यादा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा अगर आप अपना लॉ और ऑडिट राइटिंग प्रैक्टिस के साथ नहीं निकालोगे. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी आफ्टर ऑल? आप जैसे ही अपना लॉ का कुछ भी पढ़ोगे दिन में क्लास में, लॉ, ऑडिट एंड टैक्स का, यू हैव टू गो बैक होम एंड आपको आराम से रात को बैठ के उस चीज़ को रिवाइज करना, ठीक है. देन यू हैव टू स्पीक इट टू योर सेल्स. यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली स्पीक इट टू योर सेल्स मल्टीपल टाइम्स, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, टिल द टाइम यू लर्न इट, ठीक है. उसके बाद
जब मॉर्निंग में आप उठोगे यू हैव टू राइट इट डाउन. दिस इज़ समथिंग दैट माई टीचर टोल्ड मी एंड दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कि जब आप कुछ याद करोगे उसके मोमेंट बाद अगर आप लिखने बैठ गए ना, इवन हाफ आवर के बाद अगर आप उसको लिखने बैठ गए, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको अभी कोई चीज़ बता रही हूँ, आपको 5 मिनट बाद तो वो चीज़ याद ही रहेगी ना, इवन हाफ आवर के बाद भी आपको वो चीज़ याद रहेगी. बट अगर आप उसको रात को याद करते हो, सुबह जब आप उसको लिखने बैठोगे ना, यू विल ब्लैंक. ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप लिखने बैठोगे, सेकेंड टाइम होगा, बट थर्ड टाइम पे यू विल एक्चुअली रियलाइज कि आपको अब लिखना आ रहा है, यू आर एबल टू राइट दोज थिंग्स. सो रादर देन ब्लैंकिंग आउट इन द पेपर इटसेल्फ, इट्स बेटर कि आप घर पे ब्लैंक आउट कर जाओ ना, सो दैट यू नो द रियलिटी ऑफ योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपको कितना याद रह पाया, कितना आपने अंडरस्टैंड किया, उसमें से कितना आपको याद रह पाया, व्हाट इज़ योर टेंडेंसी ऑफ द माइंड टू लर्न थिंग्स, एंड वो कितनी देर तक उस चीज़ को रिस्टोर करके रख सकता है. आफ्टर ऑल यू हैव टू रिस्टोर एवरीथिंग दैट यू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 9 to 10 months, राइट. तो ऐसे आपको अपना लॉ का एंड ऑडिटिंग का सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है. ओनली दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर इट. एंड ट्रस्ट मी, मोस्टली बच्चा ना ऑडिट और लॉ की वजह से, टैक्स तो चलो है ही, बट ऑडिट और लॉ की वजह से भी मोस्टली बच्चा इसलिए रह जाता है क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होता है. मोस्टली हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे रह ही जाते हैं ऐसे ही. देन कमिंग टू द टिप नंबर 3, दैट इज़ ICAI का स्टडी मैट. प्लीज़ डू नॉट इग्नोर ICAI का मटेरियल. ICAI इज़ मेकिंग योर एग्जाम्स, सो ट्रस्ट में वो अपने मटेरियल से ही बनाते हैं. नो मैटर हाउ मेनी टीचर्स टेल यू कि हमारे मॉड्यूल्स पर सब कवर्ड है, आपको ICAI मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. those lines are sometimes actually true for papers like tax or accounts कि आप उसमें theoretical subject जो theoretical subjects है उसमें तो you do not have to skip your ICAI modules. but now अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अगर हम टैक्स की बात करें, अगर हम कॉस्ट की बात करें, so you only have to follow all the questions which are there in the ICAI module, because ICAI module में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, जो उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, सो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उसमें से वो वाली एडजस्टमेंट्स उठाई हुई होती है एज इट इज़ समटाइम्स, जो समटाइम्स आई गेस टीचर्स भी मिस आउट कर देते हैं. मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज हम उनको भी क्या करना होता है, ICAI के मॉड्यूल्स जब आपके घर पे आएंगे ना, टू बी मल्टीपल मॉड्यूल्स, तो टीचर्स को भी अपने नोट्स को कंसाइज बनाना होता है. सो समटाइम्स दे टेंड टू स्किप ऑन समथिंग. ठीक है, दे डू नॉट डू इट इंटेंशनली, बट वो हो जाता है. सो रादर देन ब्लेमिंग योर टीचर्स, बी एक्टिव एंड अपना खुद दिमाग लगाना है कि आपको ICAI मॉड्यूल में से कुछ भी नहीं छोड़ना है. नोट इट, टेक इट, बिलीव इट, बिकॉज वेन आई सफर्ड फ्रॉम इट, एग्जाम में समटाइम्स एग्जैक्ट चीज़ें वही वाली उठ के आ जाती है जो ICAI मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं. इवन द एग्जाम्पल्स, इवन द बैक क्वेश्चंस, उसमें से एडजस्टमेंट्स उठ के आ जाती है इन अकाउंट्स का पेपर या इन टैक्स का पेपर. तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स और टैक्स, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने आए ICAI मॉड्यूल के. ठीक है, उसमें से आपको थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो थ्योरेटिकल चीज़ें उसमें लिखी होती है वो शायद आपको समझ भी नहीं आएंगी. रादर ट्रस्ट योर टीचर ऑन दैट. बट इफ़ आई टॉक अबाउट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, लाइक audit, like SM, you have to have a thorough reading of your ICAI mat. Now question is कि यार मैं ICAI मटेरियल भी कर लूँगा, मैं नोट्स भी पढ़ लूँगा, मैं टीचर्स की भी सुन लूँगा, मैं क्या क्या करूँगा when you have your exams around the corner. सो हमारा हमेशा एजेंडा यही रहता है कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले हो आपको एकदम अपने पावरफुल नोट्स बना के रखने हैं, दोज नोट्स विच आर टू द पॉइंट, कंसाइज, एंड उसमें सब कुछ हो, कंप्लीटनेस भी हो उसके अंदर और एक्यूरेसी ऑफ डेटा भी हो, और दे आर वेरी इफेक्टिव. सो वो नोट्स आप कैसे बनाओगे? राइट नाउ व्हेन यू स्टडी, आपको अपने नोट्स ऐसे बना के रखने हैं कि कल को जब सिर्फ एक दिन की छुट्टी होगी हर एग्ज़ाम में, तो यू आर एबल टू गो थ्रू योर नोट्स एंड आपको लगे कि हाँ आपने सब कुछ पढ़ लिया है. तो उसमें आप क्या करोगे, लाइक हाउ आई डिड माई ऑडिट. ऑडिट में मैंने क्या किया था कि आई हैड अ बुक फ्रॉम माई रिस्पेक्टिव टीचर जिससे मैंने ऑडिट लिया था, एंड देन आई टुक ICAI मटीरियल साइड बाय साइड. तो दोनों को मैंने कंपेयर करा व्हेन आई वाज स्टडिंग वन स्टैंडर्ड, राइट. तो इधर से मैंने उनका बुक पढ़ा, इधर से मैंने ICAI का मटीरियल पढ़ा. तो आई कंपेयर देम कि क्या चीज़ मिसिंग है. सो उसको ना या तो आप
ICAI मॉड्यूल अगर आपको फाइनली अल्टीमेटली आपको टीचर का ही मटेरियल पढ़ना है, बिकॉज वो छोटी वाली कंसेप्ट बुक होती है और उसमें सब कुछ कंसाइज भी होता है, वो कलरफुल भी होता है, तो पढ़ा जाता है ईजिली। सो अगर आपको वो चीज़ करनी है तो मैंने क्या करा था, मैंने अपना ICAI मटेरियल में से जो भी चीज़ें थी वो स्टिकी नोट्स पे लिख कर, कि जो उस बुक में कवर नहीं थी, मैंने वो एग्जाम्पल्स एंड स्टिकी नोट्स वगैरह लिख के उसमें डाल दिया था ना। इफ़ यू वांट कि लिखने से तो फिर मेरा वापस टाइम वेस्ट होगा कि मैं उस चीज़ को सेम टू सेम चेप रहा हूँ वहाँ पे। सो आई टेल यू कि आप वहाँ पे क्या करो, कि आप बस एक छोटा सा स्टिकी नोट लेकर उस पर लिख दो कि रेफर पेज नंबर दिस ऑफ ICAI मॉड्यूल, कि कल को जब आप उसको पढ़ोगे, उस मॉड्यूल को, जो आपका रिस्पेक्टिव टीचर का मॉड्यूल होगा कलर्ड वाला, जब आप उसको पढ़ोगे, आपका कल पेपर है, तो आपको वो स्टिकी नोट देखेगा कि हाँ मेरे को यहाँ से कुछ ICAI से रेफर करना था, तो आप ICAI का मॉड्यूल साइड में उठा सकते हो और आप सिर्फ वही पेज पढ़ लेना कि हाँ मेरे को ये चीज़ पढ़नी थी। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल एंड लुक्रेटिव टू यू, कि आपको अपने लास्ट टाइम पे ना एटलीस्ट आपका ICAI मॉड्यूल भी कवर्ड होगा, आपका टीचर वाला मॉड्यूल भी कवर्ड होगा, आपकी एटलीस्ट कंप्लीटनेस तो होगी पूरे सब्जेक्ट की, कि आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है, राइट। एंड देन आपको ये भी डर नहीं होगा कि यार मैंने ICAI मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, बिकॉज ट्रस्ट मी ICAI मॉड्यूल में से चीज़ें आती हैं। इवन इफ़ यू हैव सीन योर फाउंडेशन का ICAI मॉड्यूल, उसके जो साइड वाले बॉक्सेस होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, जिसमें वो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, वहीं से ही उठ के MCQs आ जाते हैं, वहीं से उठ के पूरा एक केस स्टडी आ जाता है। ट्रस्ट मी ऑन इट, डू नॉट इवन टेंड और थिंक ऑफ स्किपिंग योर ICAI मॉड्यूल का प्रिपरेशन। Now coming to tip number 4, flowcharts and notes. So as I previously mentioned कि notes आपके लिए आपका एक अस्त्र होता है बेसिकली, एक NECO वॉरियर का इन द एग्जाम्स, क्योंकि जिस हिसाब के आपके नोट्स होंगे उसी हिसाब से आपका प्रिपरेशन अल्टीमेटली डिपेंड करता है। बिकॉज आज मैं कोई भी चीज़ याद कर लेती हूँ एंड 9 मंथ्स के बाद मुझे नहीं पता मुझे वो चीज़ याद रहेगी कि नहीं, बट अगर मेरे नोट्स उस हिसाब से बने हैं कि जैसे मैं अपने नोट्स को रीड करूँ, आई गेट टू रिमेंबर व्हाट आई स्टडीड 9 मंथ्स बिफोर, देन येस योर नोट्स वर इफेक्टिव। समटाइम्स अगर आप ऑनलाइन टीचर्स अगर आप लेते हो, तो ऑनलाइन टीचर्स आपको बने बनाए नोट्स दे देते हैं, गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं नोट्स। सो वी समटाइम्स गेट लेजी कि हाँ जब नोट्स मिल ही रहे हैं तो क्यों, बट ट्रस्ट मी, जब तक आपने नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाया ना, आपको चीज़ें नहीं याद होंगी। यू वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर दोज थिंग्स until unless you are making your notes yourselves. So do keep in mind, you do not have to be lazy while preparation of your notebook. Always and always maintain particular notebooks, colorful notes, colored pen जो आता है 4-in-1 वाला, it's it's not a must but it's a recommended thing to do, कि आप वही पेन यूज़ कर सकते हो टू हाईलाइट समटाइम। NECA एस्पिरेंट एटलीस्ट हम अपने नोट्स को तो कलरफुल बना ही सकते हैं, ज़िंदगी अभी तक कलरफुल नहीं रही है, तो एटलीस्ट नोट्स कैन बी कलरफुल। एंड नाउ कमिंग टू फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स समटाइम्स आपने चीज़ें देखी होंगी कि कुछ टीचर्स का भी तरीका होता है कि वो आपको सब चीज़ें फ्लो चार्ट्स के थ्रू करवाते हैं, बिकॉज आवर माइंड वर्क्स इन अ वे कि हमें टैबुलर फॉर्म में जो चीज़ें होती है ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। Now coming to tip number 5, that is mock test papers and test series. So trust me guys, this is a very crucial step, क्योंकि आप जितना मर्जी याद कर लो बट कल को अगर आपको ये चीज़ भी पता है कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको अपने पेपर में कैसे अपना टाइम मैनेज करके चलना है, आपको वो एंग्जाइटी, वो फियर, वो स्ट्रेस, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, यू आर गोइंग टू लैंड इन टू अ डिज़ास्टर, ट्रस्ट मी ऑन इट। क्योंकि कल को जब आप अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर लिखने बैठोगे ना, जब अपना ICAI अपना मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ करता है, इट रिलीजेज 2 sets of MTPs, तो जब आप अपना फर्स्ट पेपर भी घर पे बैठ के लिखोगे ना, यू विल बी ब्लैंक, यू वुड नॉट नो हाउ टू राइट योर एग्जाम, यू नॉट नो कहाँ से पेपर स्टार्ट करना, यू वुड नॉट नो कि आपको अराउंड द कॉर्नर जितना भी शोर आ रहा है, आपको सब चीज़ों में अपने आप को कैसे मैनेज करके रखना है, आपको वो एग्जाइटी को कैसे डील करना है, वो सब चीज़ें कैसे करनी है, आप वहाँ पे ब्लैंक आउट कर जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स 100 times बेटर टू ब्लैंक आउट एट योर होम्स rather than going straight into and experimenting into an exam hall. तो उससे तो फार बेटर चीज़ है, बिकॉज यू मस्ट बी हैविंग हर्ड ऑफ मैनी गाइज हु एक्चुअली से कि यार मेरे को ये चीज़ आती थी, मैंने घर आके ये चीज़ 10 बार ही सॉल्व करी है और मेरे को आती थी ये चीज़, बट मेरे साथ एग्जाम में पता नहीं क्या हो गया। सो वो कुछ नहीं होता, वो एग्जाम में ब्लैंक आउट करने का जो फियर होता है, दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट यू गिव। टेस्ट सीरीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे किसी टेस्ट सीरीज को प्रमोट नहीं करूँगी, बट आई वुड सिंपली से कि जो ICAI अपने MTPs और RTPs के सेशंस निकालता है, यू एटलीस्ट हैव टू गिव दोज, यू हैव टू सेल्फ assess those tests,
कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको कितना टाइम लगा, क्या करा क्या नहीं करा। देन आप किस इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ोगे, तो आपको वहाँ के टेस्ट सीरीज देनी है जो आपका टीचर आपको देगा। अगर आप ऑनलाइन टीचर के लेते हो तो आजकल काफ़ी टीचर्स अपने टेस्ट सीरीज देते हैं, आपको वो वाली टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करनी है। आपको एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट हर सब्जेक्ट के देने हैं। माइंड इट, ओनली दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। 2 से 3 अगर नहीं होते सो एटलीस्ट ट्राई कि आप मेजरली एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और एक टैक्स का पेपर, येस आपको उनका तो कम से कम एक टेस्ट दे के रखने हैं। एटलीस्ट 2 टेस्ट तो आप दे के रखना। एक टेस्ट आपको देना ही है जिससे आपको आपकी एक्चुअल कंडीशन पता लगेगी। दूसरा टेस्ट यू हैव टू गिव इट लाइक कि हाँ यही मेरा फाइनल एग्जाम है। मैंने अपने टाइम पे भी MTPs और RTPs दिए थे, और उसके साथ मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी विच वॉज आई गेस बाय CA इंडिया। तो उसमें क्या था कि आप जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करो 3-4 चैप्टर्स का क्लस्टर बन के दे गिव यू अ टेस्ट, आपको वो अटेम्प्ट करना होता है, फिर वो आपको चेक करके देते थे टेस्ट, एंड उसके बाद वो आपके 2 फुल सिलेबस टेस्ट लेते थे। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस टू डू सो यू ऑलवेज डू नॉट हैव टू निगलेक्ट द पावर ऑफ टेस्ट सीरीज। तो एटलीस्ट अपने टेस्ट सीरीज तो देख रखना है, एंड इफ यू कैन नॉट अफोर्ड देम तो एटलीस्ट आप अपने ICAI का MTPs और RTPs तो ज़रूर देना, बिकॉज दोज आर द मोस्ट इफेक्टिव। सो दैट्स इट गाइज, एक बारी बस ये चीज़ें एक बारी रच के फॉलो कर लो, एंड आई स्वेयर टू गॉड नथिंग कैन स्टॉप you from clearing your CA इंटर both groups in the very first attempt. आई रियली होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, एंड आपको एक स्ट्रैटेजी मिल गया हो कि आपको कैसे अपना CA इंटर को अप्रोच करना है। एंड इफ येस देन जाने से पहले डू गिव इट अ लाइक and a comment, and do subscribe to my YouTube channel guys, so that you do not miss out on any future further updates. So that is it guys, thank you so much and have a nice day. Bye bye.